Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today we are on to the sixth video lesson on the rotational motion. In the previous videos, I have spoken about the perpendicular axis theorem, parallel axis theorem और उसमें हमने one or two small examples देखे थे. Today we are going to learn more uses, application of those two perpendicular axis theorem and the parallel axis theorem. हम उसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस को और अच्छे से समझेंगे बच्चों, ठीक है? तो फटाफट स्टार्ट करते हैं. If you remember, I have taught you that moment of inertia of ring. Let's suppose if I talk about the ring, the moment of inertia ring क्या था बच्चों? mr square, right? Having mass m and radius r, that was the moment of inertia of the ring. Basic बात है, अपने को पता था. About the axis passing through its center and perpendicular to the plane of that ring. मतलब ऐसे इस axis के about. All good. But now today we are going to learn what if they ask me to find the moment of inertia about, let's suppose, this axis. Well, this is in the same plane. हम वापस उसी को लेकर आते हैं. तो अगर ये हमारा रिंग है तो इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट क्या होगा, हम उसको थोड़ा देखेंगे और समझेंगे. ऑल गुड. तो एक काम करते हैं, ये आपका y एक्सिस मान लो, इसको आप मान लो x एक्सिस और इसको मान लो आप y एक्सिस. Moment of inertia about this axis is, let's suppose, ix, and moment of inertia about this axis is, let's suppose, iy. I want to find the moment of inertia about this axis. These two axes के about मेरे को चाहिए होगा, ठीक है? Anyways, let us understand one thing. The moment of inertia about this axis and this axis are going to be same because of the symmetry. तो can I say that? Let's say ix is equals to iy is equals to I. ऐसा कुछ हम लोग मान लेते हैं. Now, perpendicular axis theorem says that sum of the moment of inertia about two axes perpendicular to each other and lying in the same plane of the body will be equal to the moment of inertia about third axis, which is perpendicular to the plane or these two axes and passing through the point of intersection. This is what the perpendicular axis theorem says. And over here, these two axes are going to intersect at one point, and that point, my dear kids, will be the center. और इसके about, let's suppose, moment of inertia हमारा z axis में है, उसको मान लो iz. Then, according to perpendicular axis theorem, can I say that ix plus iy should be equals to iz according to the perpendicular axis theorem. Now, since we have taken that ix and iy are equal to I, so can I say that 2 times of I is equals to iz, and we know the value of iz, mr square. Then the moment of inertia should be equals to how much? Iz upon 2, and iz, my dear kids, is given as mr square. So moment of inertia about, x or y, which I have taken as I, should be given as mr square upon 2. So if they ask me to find the moment of inertia about this axis, so I can easily say now that ix is equals to iy should be equals to mr square upon 2, which is the moment of inertia of the disk about axis passing through the center and perpendicular to the plane of the disk. But यहाँ पे क्या है, ये जो mr square by 2 है, इसके about है या फिर इसके about भी सेम ही रहेगा. You can just take anything, कुछ से भी आप उसके अक्रॉस जो डायमीटर ले लो, इधर हो या फिर ऐसे हो या ऐसे हो, किधर भी हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr square by 2 ही होगा. Now let us have a quick understanding of one more example based on this. अगर मेरे को कोई बोल दे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस निकालना आपको, which is at a distance, let's suppose, किसी भी डिस्टेंस पे है या आपका कोई भी एक डिस्टेंस है, मान लो कुछ भी डिस्टेंस है, आप इसको ले लो 2r ले लो, एंड इस रिंग का जो रेडियस है वो r ले लो. तो दिस लेंथ इज 2r, चलो इसको बाहर लिखते हैं just to avoid any sort of confusion, ठीक है जी. तो ये आपका डिस्टेंस है 2r, ये आपका सेंटर हो गया. आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इसके अबाउट मेरे को निकालना है. कोई मुश्किल वाली बात नहीं है. व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना यूज दिस कांसेप्ट दैट जस्ट नाउ वी हैव लर्नड, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर और इसके पैरेलल इसी प्लेन में, ठीक है, ये जो एक्सिस है इस रिंग के प्लेन में है. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों? जस्ट नाउ वी हैव गॉट mr square by 2, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम निकाल देंगे अबाउट दिस. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस शुड बी हाउ मच? Moment of inertia about this, which is mr, r radius small लिया हमने, तो mr square upon 2 plus m of 2r square, है ना, तो plus m of 2r whole square. So this is going to be the moment of inertia about this axis, which is in the same plane of this ring और किसी 2r distance के दूरी पे है. तो आप इसको ऐसे easily निकाल सकते हो बच्चों, है ना. This is going to be how much? 4 times 2 8 9 mr square upon 2. ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, जिसमें परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस का हमने अच्छे से यूज करा है.
तो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल गुड। चलो इसी तरह से हम रिंग का हो गया। लाइकवाइज वी कैन डू अबाउट द डिस्क। तो हम डिस्क के बारे में भी बच्चों समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ देखो डिस्क का अपने को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अगर डिस्क है ऑफ मास लेट्स सपोज m, रेडियस मान लो r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क और पासिंग थ्रू द सेंटर, वो अपने को पता है क्या होता है, उसको मान लो I0 मान लो, दैट ऑलरेडी वी नो दैट इज mr²/2। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमको ऑलरेडी पता है। बट नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज इन द सेम प्लेन ऑफ द डिस्क एंड ऐसे जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, इसके पैरेलल जा रहा है, सॉरी नो, ये जो डिस्क है इसी के प्लेन में है, वो ऐसा रखा हुआ है। इसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। फिर से वही कहानी जो हमने यहाँ पे करा है। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री अगर हम मान लेते हैं कि भैया ये दोनों, इसको Ix मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट मान लो Iy मान लो, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री Ix एंड Iy आर बोथ गोइंग टू बी इक्वल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। तो Ix प्लस Iy शुड गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस Z, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन के इस तरफ, बाहर की तरफ। ऑल गुड। तो ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं जी। तो कैन आई से दैट लेट्स Ix इज इक्वल्स टू Iy इज इक्वल्स टू बच्चों I मान लो, ठीक है जी। अगर हमने ऐसा कुछ कर लिया तो हम कर सकते हैं कि वी नो दैट परपेंडिकुलर थ्योरम Iy इज इक्वल्स टू I of Z एंड माय डियर किड्स दिस इज बोथ इक्वल, सो आई कैन से 2I और Iz कितना होता है mr²/2। सो व्हाट फाइनली वी गोना गेट इज, इसके अबाउट कितना मिल जाएगा मेरे को, I शुड बी mr²/4। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब इस पे अगर वो जो भी पूछ दे किसी और एक्सिस के टेंजेंट के, तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है जी। लेट्स सपोज वी हैव अ डिस्क, है ना, और देयर इज अ एक्सिस व्हिच इज टेंजेंट टू दिस, इसके टेंजेंट में, तो ऐसे सेम प्लेन में, सेम अगर बोर्ड को हम डिस्क का प्लेन मान लेते हैं तो इसी प्लेन में ये लाइन है और इसके अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। ओके, सो व्हाट वी नो इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑलरेडी वी नो, दैट इज लेट्स सपोज इसको मान लो तुम I मान लो, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस है, r के बराबर हो जाएगा। तो I dash शुड बी हाउ मच, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, I dash शुड बी इक्वल्स टू I प्लस mr² कर देंगे, और I मेरे को पता है व्हिच इज mr²/4 और प्लस mr² कर देंगे बच्चों, तो दैट्स गोना बी हाउ मच 5/4 mr², 5/4। अच्छा, इसके अबाउट कितना हो जाएगा mr², ठीक है ना, हाँ सही है। तो दिस इज गोना बी mr²/4 और ये आपका हो गया mr², तो कितना हो जाएगा आपका 5mr²/4। सिंपल है। चलो फटाफट इसको नोट कर लो। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट, आई एम श्योर आपने इसको नोट कर लिया होगा ना, गुड। तो कोई मुश्किल नहीं है अगर आप इसको अच्छे से समझ लो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। देखो रोटेशनल मोशन का एक कंस्ट्रेंट है, आपको हर एक बैरियर को क्रॉस करना होगा। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता है आप ये नहीं समझोगे, बात समझ रहे हो ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना है, फिर ये समझना है, बाद में टॉर्क समझना है, बाद में एंगुलर मोमेंटम समझना है। तो एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू कैन क्रॉस द बैरियर। फिर हम धीरे धीरे रोलिंग में चले जाएंगे ना। तो आपको हर एक चीज का अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी होना चाहिए। आप ऐसा मान लो कि लेबल्स है ना, इफ यू प्लेइंग अ गेम दीज आर द लेबल्स, and that's what makes this rotational motion a difficult topic, because you have to have the pure understanding of all of the linked concept in order to solve the good level question. I'm going to do some JEE mains का questions कुछ है, तो let me complete some more theories। कुछ और concept बताता हूँ, उसको JEE mains के 2-4 questions करवा देंगे आपको। मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान से मजे से ये सारे काम आपको हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो इतना तो हो गया। अच्छा, एक हम लोग और देखेंगे इसको फटाफट, रेक्टेंगुलर लैमिना का ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर शीट लैमिना, जो आपकी मर्जी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग से समझना है इसको अच्छे से। लेट्स सपोज कि वी हैव अ रेक्टेंगुलर शीट और इस टोटल का मास आप मान लो m है, इसका लेंथ मान लो आप l ले लो, और इसका जो विड्थ है उसको आप b ले सकते हो, है ना। नाउ इफ अबाउट दिस तो मेरे को पता है, अबाउट दिस पता है ना, अबाउट दिस तो आपको पता है, याद है कुछ, है ना, ml²/12 पता है ना। सो इसका जो आपको होगा अबाउट दिस वो अपने को पता है, बट मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए अबाउट दिस एक्सिस। एक ऐसे एक्सिस है, चलो इसको हम सेंटर से एग्जैक्टली मिड पॉइंट से क्रॉस करवाते हैं जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा एक्सिस है व्हिच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीस टू वर्टिसेस, मतलब बीच से पास कर रहा है।
इसके अबाउट मेरे को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इन द सेम प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर पॉइंट। तो अगर मेरा बोर्ड प्लेन है तो रेक्टेंगुलर लैमिना उसी प्लेन में रखा हुआ है, एक्सेप्ट इन द सेम प्लेन, और ये आपका एक्सिस हो गया है ना, ये एक्सिस हो गया। इसके अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ मास गिवन एज एम, और आपका लेंथ एल दे रखा है और विथ बी दे रखा है। एक बार ट्राई करो, कोशिश करो करने का, मुश्किल नहीं है, आप इसको बड़े मजे में आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप उल्टा पुल्टा गड़बड़ ना करो, ठीक है जी। चलिए आप इसको ट्राई कीजिए। मीनवाइल आई एम गोना इरेज दिस पार्ट एज वेल, मैं इसको भी साफ कर लेता हूं। चलिए ट्राई करो, ट्राई करो, मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना और सारे कुछ होते जाएंगे, ठीक है जी। ऑलराइट देन, आई एम डन क्लियरिंग विद दैट पार्ट। चलिए इसको हम लोग साथ में करते हैं। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, दो तरीके हैं इसको करने का, दो तरीके हैं। एक आपका फंडामेंटल कोर मेथड हो गया, और दूसरा आई एम गोना यूज द कांसेप्ट ऑफ दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हम उससे करेंगे, ठीक है। तो पहले काम तो हम इसको ऐसे करेंगे कि भैया इस केस में ना एक थिन शीट मान लो, आप ऐसे ना स्ट्रिप मान लो, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, और इसका जो आप थिकनेस रख लेते हो dx मान लो एट अ डिस्टेंस ऑफ x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिप आई कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस शीट, एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। तो इसका अगर मैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखा देता हूं, ऐसा सिर्फ नहीं कि वायर नहीं है, इट इज अ रेक्टेंगुलर शीट। अच्छा, तो एक काम अपने को करना पड़ेगा, to find this moment of inertia about this elementary particle about this axis, I must know the mass of this elementary particle। ये छोटा सा मास मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल मास इज m, तो इसका जो आपका जो एरियल मास डेंसिटी होगा, मास अपॉन द एरिया, सो लेट्स सपोज मास, एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, L into B, तो लेट्स सपोज LB, तो दैट इज योर एरियल मास डेंसिटी। इस छोटे से स्ट्रिप का मास कितना हो जाएगा देख लो, तो dm शुड बी इक्वल्स टू इसका एरिया इनटू द सिग्मा, इसका एरिया कितना हो जाएगा b टाइम्स dx, और सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया m अपॉन LB। कुछ कटम पिटम हो रहा है क्या, b इज गोना गो, तो जो स्मॉल मास होगा बच्चों इसका, दैट्स गोना बी m अपॉन L dx। सो एलिमेंट्री पार्ट का जो मास है वो dm इज गोना बी इक्वल्स टू m अपॉन L टाइम्स ऑफ dx, ठीक है। तो अब बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल मास, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो लेट्स सपोज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज di, तो di शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, dm, ध्यान रखना लेंथ इज x, डिस्टेंस इज x, तो x स्क्वायर हो गया। तो दिस इज द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे टू फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक सेकंड मैं इसको देख लूं, हाँ अभी और भी स्पेस डाउन में है। तो व्हाट वी कैन डू इज नाउ, सो द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी di, राइट, इंटीग्रेशन कर देंगे। Now, just let me tell you one thing. If I put the limits, इसका लिमिट देखना होगा मेरे को, तो चलो उसका चर्चा हम यहाँ करते हैं, हाँ? यहाँ पे इसका चर्चा करते हैं बच्चों। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, I should be equals to di should be how much, आपका dm x स्क्वायर, dm का वैल्यू पुट कर दो, या फिर चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, dm x स्क्वायर इंटीग्रेशन कर दो। Now the thing is, the variable is x, ये हमारा x वेरिएबल है, ओके। एक स्टेप और लिख लो, dm का वैल्यू पुट कर दो जी बच्चों। तो dm कितना हो जाएगा, m अपॉन l, सारे के सारे वेरिएबल्स को ले आओ, m अपॉन l dx हो गया, और दिस इज योर x स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट द वेरिएबल इज x। x कैन वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर, ये अगर इस पॉइंट को हम एक्सिस स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, तो ये जो लेंथ होगा बच्चों दैट इज गोना बी l अपॉन 2, बिकॉज टोटल लेंथ इज l, तो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी l up by 2, this is going to be l by 2. So if I put the limit from 0 to l upon 2, then you must ensure that कि इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, तो you must multiply this with 2, ये आपको दिमाग में रखना, उसको भूलना नहीं है, मिस कर गए तो फिर रॉन्ग आंसर आ जाएगा। I believe you have understand why I multiplied by 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, तो हमने लिमिट अगर 0 to l by 2 पुट करा है, then I'm just finding the moment of inertia of this part, which means I need to multiply with the 2 to get the moment of inertia of the entire rectangular sheet about this axis। कहानी खत्म। इसके आगे फटाफट कुछ मैथमेटिक्स है, इसको लगा लेते हैं। तो 2 m upon l तो is a constant, बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों x क्यूब upon 3, you must put the limits from 0 to l upon 2, इसको भूलना नहीं आपको। तो ठीक है, कहानी खत्म। तो इसको हो जाएगा 2 upon l, और 3 बाहर आ गया बच्चों, that's going to be 3l, that's going to be l क्यूब, इसको l रख लो ना, l क्यूब upon 8, l cube upon 8. Now probably we can just cancel a bit of things, so
ए हो गया बच्चों एल स्क्वायर, तो 2 to 4 हो गया, दिस इज ऑल्सो गॉन, तो 1/12 m l स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। ये हमारा कहानी तो समझ में आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस हो गया, ऑल गुड। अब हम ध्यान से देखेंगे कि मेरे को क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इस सेंटर, इसके अबाउट मेरे को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, ऑल गुड। इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो दिस इज, अगर इसको हम y एक्सिस मान लें और ऐसा ही वी हैव वन मोर एक्सिस, अगर x एक्सिस मान लेते हैं, तो कैन आई से दैट दिस इज योर IY, कैन आई से दैट लाइकवाइज बिकॉज ऑफ द सिमेट्री IX भी कितना होगा बच्चों, IX शुड भी कितना होगा, वो भी सेम होगा, बट इन दैट केस यू हैव टू बी केयरफुल, L की जगह B हो जाएगा, राइट। सो विल बी हैविंग ml स्क्वायर बाई 12 हो गया ना, तो आपका हो जाएगा 1/12 mb स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, करेक्ट है जी। कोई दिक्कत यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत, बहुत अच्छा। अब देखो अबाउट दिस z एक्सिस, इसके एक्सिस का अबाउट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे हम लोग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस मान लो व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लैमिना, ऑल गुड, और इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हो जाएगा 1/12, दैट इज Fx टिप और लिख लो, Ix हट जाओ यार, दैट इज गोना बी Ix प्लस Iy। इतनी बात तो मेरे को क्लैरिटी से समझ में आ रही है। तो Iz शुड बी हाउ मच, फाइनली वी गुड टू नो दैट Iz शुड बी इक्वल टू बच्चों 1/12 ml स्क्वायर प्लस 1/12 mb स्क्वायर, तो आई कैन से 1/12 ml स्क्वायर प्लस 1/12 mb स्क्वायर, सो Iz माय डियर किड्स इज गोना बी 1/12, कॉमन ले लो और mb कॉमन ले लो, m/12 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this rectangular sheet about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the center, हमने उसका ऐसे निकाल लिया, all good। चलिए अब हम इसी को देख सकते हैं बहुत तरीके से, अगर हम इसको स्क्वायर बना देते हैं, if I make it a square, तो एक काम करो फटाफट आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। अगर हम बना लेते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर का कर लेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है, बड़ा इजीली आ जाएगा ना। स्क्वायर में क्या होगा, लेंथ एंड विड्थ दोनों इक्वल होगा जी, तो इसको वैल्यू पुट कर दो और क्या, एल बी दोनों इक्वल मान लो। तो लेट अस से कि वी हैव अ स्क्वायर और उसका साइड हमने मान लिया ए, लेट्स सी दैट वी हैव अ स्क्वायर और इसके अबाउट मेरे को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका साइड हमने ए मान लिया है, देन एल विल बी इक्वल्स टू ए एंड बी आल्सो विल बी इक्वल्स टू ए। वेल इन दैट केस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस माय डियर किड्स इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1m/12 l स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर विल आल्सो बी इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस गोना बी 2a स्क्वायर, 2 से 8 12 कैंसिल हो जाएगा, तो विल बी हैविंग ma स्क्वायर अपॉन 6। बच्चों ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर, इजी है ना, बढ़िया। अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, चलो चलो चलो। अच्छा इसी में देख लेते हैं, एक बात आपको बताता हूं, इसको मैंने तो इरेज कर दिया, थोड़ा और जो शॉर्ट ट्रिक लगाना है, इतना डेरिवेशंस करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो सपोज कि द सेम थिंग, अगर हमने रेक्टेंगुलर लेमिना के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ऐसा कर लेना, अबाउट दिस एक्सिस मेरे को चाहिए, ठीक है जी। एक काम करो, अगर एल है और ये बी है, लेट मी फर्स्ट फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। हमने क्या पढ़ा है कि वी शिफ्ट द मास पैरेलल टू द एक्सिस, यू नो कीपिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं करता। इफ याद है आपको वीडियो लेसन सेकंड या थर्ड में मैंने बताया होगा, आप जाकर देख लेना, उसको लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इफ आई जस्ट कंप्रेस इट, इसको कंप्रेस कर दो, देखो सारे मास जो हैं, आप ऐसे सोचो, थिंक अबाउट दिस, ए मास यहां पे है, इफ आई कंप्रेस, ऊपर नीचे से मैंने फोर्स लगा दिया एंड आई जस्ट वांट टू कंप्रेस दिस, इसको कंप्रेस करते जाओगे तो क्या बन जाएगा, एक रॉड बन जाएगा, दिस विल बी अ रॉड, ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि और ये जो मास है आपका डिस्टेंस वही सेम रहेगा। इफ यू कंप्रेस इट, वो जो डिस्टेंस ऑफ दैट मास, अगर ये पॉइंट को मैं अगर मान लेता हूं, तो इसका अभी भी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस सेम ही है, राइट, कैन यू सी दैट, समझ में आ रहा है बात। लेट्स सपोज डिस्टेंस बच्चों कुछ a था, लेट्स सपोज ए कुछ भी मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, तो सेम डिस्टेंस विल स्टिल बी परसिस्टिंग ओवर हियर, सेम डिस्टेंस रहेगा। और हमने पढ़ा है कि इफ यू शिफ्ट द मास पैरेलल टू द एक्सिस कीपिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज, हमने ऑलरेडी देख रखा है। और मेरे को पता भी है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास से अगर सेंटर से पास करता है एक्सिस, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों क्या होता है आपका लेंथ, तो लेंथ कितना हो गया ml स्क्वायर बाय 12, याद है ना, मैंने रॉड का बता रखा है।
अच्छा, तो अबाउट दिस एक्सिस तो मेरे को मिल गया। सेम थिंग इफ आई वांट टू डू अबाउट दिस एक्सिस, अगर मेरे इस एक्सिस का अबाउट चाहिए होगा तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कंप्रेस कर देंगे, राइट, ऐसे कंप्रेस कर देंगे, समझ रहे बात को, ताकि सारे मासेस जो वो सेम रह जाए। ऐसे कंप्रेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा मोमेंट, समझ रहे हो बात को, फिर से रिपीट करूं, अबाउट दिस एक्सिस हमने ऐसे कंप्रेस किया था, तो अबाउट दिस एक्सिस ऐसे कंप्रेस करोगे तो जितने भी मासेस हैं वो उसके सारे जो वैल्यूज रहेंगे वो सेम ही रह जाएगा, वो डिस्टेंस सेम हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर एक मास लेते हैं बच्चों, तो अगर इसको मैं ऐसे कंप्रेस करूं, इफ आई डू द कंप्रेशन लाइक दिस, इस तरफ से फोर्स लगाकर, इस तरफ से फोर्स लगाकर, तो इसका जो डिस्टेंस है ये यहां आ गया, मान लो यहां पे आ गया, बट स्टिल इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी मान लो, दैट वुड स्टिल रिमेन द सेम, वो अभी भी सेम ही रहेगा। तो इफ यू डू द कंप्रेस अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे कंप्रेस कर दे तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, एंड दिस इज गोना बी अ रॉड, ऐसा रॉड बन जाएगा वो ना, एक ऐसा बी लेंथ का एक रॉड बन जाएगा, और सेंटर ये हो जाएगा आपका, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, इसको मान लो आई एक्स और इसको आप आई वाई मान सकते थे, तो आई वाई, तो आई एक्स भी कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन 12। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, अब दैट इज गोना बी अबाउट जेड एक्सिस, इसके प्लेन के बाहर, तो सेम थिंग होल स्टोरी वही है, m by 12 l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा छोटा सा शॉर्टकट सोचने का तरीका है, इसको बहुत यूज करेंगे हम लोग क्यूब और क्यूबाइड में, इसको हम आगे जाकर बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है। आई बिलीव आपको समझ में अच्छे से बात आ रही होगी, है ना जी, कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत है तो बताओ, वी कैन हेल्प ऑन, वी कैन वर्क आउट ऑन दैट, और उसको हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो अब फटाफट थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा शेल का, सिलिंड्रिकल शेल का देखते हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द बिगर क्वेश्चन, नहीं तो फिर हो जाएगा मुश्किल। तो इन छोटे छोटे बातों का बहुत ध्यान से देखो, समझो और प्रैक्टिस करो। आप एक बार देखोगे तो आपको लगेगा हाँ मेरे को समझ में आ गया, याद भी हो गया, बट आफ्टर फ्यू डेज इफ यू लुक बैक इनटू दिस, हो सकता है कि आपको ये दिमाग में ना रहे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर टाइम इंटरवल में बच्चों रिवाइज करते रहो, छोड़ना वोड़ना नहीं है, रिवाइज आपको करते रहना, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा टॉपिक है जो काफी दहशत, एक गब्बर टाइप टॉपिक है, इसने बहुत ही दहशत बना के रखा है, बट आई एम श्योर कि इफ यू डू द प्रैक्टिस ऑन द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ स्टार्ट टू फिनिश देखते जाओगे बार बार, तो ये काफी इजी लगेगा और अच्छा लगेगा आपको, फिर एक कॉन्फिडेंस का जो सेंस बिल्टअप होगा ना, वो आपको बहुत मजा देगा, आपको लगेगा हाँ मेरे को ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम देख लेंगे अब कौन सा नंबर था मुझे याद नहीं है, मैंने हैशटैग मार दिया, ठीक है। हम लोग देख लेंगे सिलिंड्रिकल शेल, सिलिंड्रिकल शेल का देख लेते हैं। अब शेल का तो ठीक है, अपने को पता है mr स्क्वायर होता है, बट नॉट अबाउट द एक्सिस व्हिच वी हैव लर्न्ड। अगर मैं मान लूं बच्चों कि मेरे पास एक सिलिंड्रिकल शेल है, एक ऐसा है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल शेल है, और इसके इस एक्सिस के बारे में तो पता है mr स्क्वायर, राइट, ऑलरेडी मैंने इसमें डिस्कस कर रखा है। बट अगर कोई मेरे से बोलता है कि भैया इसके अबाउट निकालो, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, लो लग जाएगी लंका, है ना जी। अब ऐसे इसको इजिली हम लोग नहीं कर सकते हैं इजिली, तो थोड़ा अच्छे से इसको मान लो रेडियस हमारा r है और सिलेंडर का लेंथ बच्चों मान लो l है। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिमाग तो को लगाना ही पड़ेगा। हाँ शॉर्टकट भी है, उसको हम लोग बात करेंगे, पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए कैसे हम उसको स्टार्ट टू फिनिश करेंगे, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूअस मास, पहली बात तो ये, और मास जो है इसके सरफेस पे, इस सिलेंडर मान लो दिस इज सिलिंड्रिकल शेल, तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट ओवर द सरफेस एरिया, तो इतना तो मेरे को पता है। और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच, एच यहाँ पे एल है, आर तो रेडियस आर है ही। तो पहला काम जो आप करोगे, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू गोना डू इज यू गोना फाइंड द सरफेस मास डेंसिटी, तो आप निकालोगे सिग्मा। सिग्मा क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन द सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एल, या पहला काम हमने कर लिया। तो व्हाई आर वी डूइंग दिस, वेरी सिंपल, बिकॉज इट इज अ कंटीन्यूअस मास बॉडी, तो हमको एक ही बात पता है दुनिया में कि इंटीग्रेशन करना होता है, दैट्स हाउ वी गोना रीच टू व्हाट वी नीड टू नो, ऑल गुड। तो इंटीग्रेशन हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है इस केस में, और हर एक केस में जहां पे कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस होता है। ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक अ एलिमेंट्री पार्टिकल, जो कि डेफिनेटली आई बिलीव यू गाइस विल एग्री दैट्स गोना बी अ रिंग, एक रिंग होगा, आप ऐसे मान लो, अगर सिलेंडर है वर्टिकल देखो, तो इस वाले पार्ट को हम एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले रहे हैं, ठीक है जी, ना, ऐसा रिंग होगा। वो रिंग का थोड़ा सा थिकनेस तो आपको लेना ही होगा, है ना, टिक 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 टिक, एक dx थिकनेस का एक रिंग ले लो एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स सपोज कि x। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, इस रिंग का, तो इस रिंग का अगर हम साइड व्यू देखें फ्रॉम दिस साइड,
इफ आई एम ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम दिस साइड, अगर साइड से देखते हैं, अगर मेरा सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, इफ आई एम लुकिंग द साइड व्यू, तो मेरे को कैसा दिखेगा वो, मेरे को ऐसा दिखेगा वो रिंग है ना, वो रिंग मेरे को ऐसा दिखेगा। ऑल गुड, ठीक है जी। और इसका रेडियस भी वही होगा जो इस सिलेंडर का रेडियस है, r होगा। बट दिस रिंग गोना हैव अ स्मॉल मास, लेट्स सपोज m, इसका थोड़ा सा थिकनेस होगा, लिटिल बिट ऑफ थिकनेस विल बी देयर ऑफ dx, क्योंकि थिकनेस नहीं हो तो उसको आप इनफाइनाइट टाइम्स भी कीप कर दो एट द सेम प्लेस, यू विल नेवर बी गेटिंग अ सिलेंडर। तो थोड़ा सा थिकनेस आपको इसका होगा ही। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको साइड व्यू देखता हूं, फ्रंट साइड से देखना ऐसा दिखेगा, और फ्रंट से मैं देखता हूं, लुक एट फ्रॉम द फ्रंट, अगर इस साइड से मैं देख रहा हूं इसको, तो मेरे को ऐसा कुछ दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा वो टिंग 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 टिंग। और ये पीछे वाला पार्ट, उसको मैं डॉटेड लाइन से अगर ड्रॉ करता हूं, थोड़ा गंदा हो गया, हटा दो इसको, आप साइड से इसको ऐसे देख लो ना। तो इसका मास निकालना मेरा नेक्स्ट काम है, टू फाइंड द स्मॉल मास ऑफ दिस थिंग। तो इसका छोटा सा मास मान लो कि आप, इसका छोटा सा मास डीएम है बच्चों। ऑल गुड। और तो डीएम कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका छोटा सा एरिया जो होगा आपका कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया, क्योंकि ये भी एक सर्कल है, एक तरह का मान लो छोटा सा रिंग है जिसका कुछ थिकनेस है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू जो h होगा, जो l होगा आपका, वो डीएम dx के बराबर हो जाएगा, राइट है ना। दिस इज गोना बी अ सिलेंडर, इसको सिलेंडर मान लो, बहुत छोटा सा सिलेंडर, सपोज की मार्कर का ये वाला पार्ट है ना, दिस इज गोना बी दैट रिंग, इस रिंग को ऐसे समझो आप। तो ये थिकनेस है dx है, तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों 2 पाई r, और h की जगह जो होगा वो छोटा सा dx होगा, दैट आई बिलीव यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई r इनटू थिकनेस इज dx, और सिग्मा लगा देंगे, तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, m अपॉन 2 पाई r l। कुछ कटम पिटाई कर लेते हैं ना, तो 2 पाई r तो गया तेल बेस में, सो द स्मॉल मास बच्चों दैट इज गोना बी हाउ मच, m अपॉन l dx। देखो इसको लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन की तरह भी समझ सकते थे कि मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका हो जाएगा लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू m अपॉन l टाइम्स ऑफ dx, जो थिकनेस है, वैसे भी समझ सकते थे, बट आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन द डीपर की हाँ इसको हम सरफेस एरिया की तरफ देखें, तो ऐसा मैंने कोशिश करा है। अच्छी बात है, हमने डीएम निकाल लिया। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बी केयरफुल अबाउट दिस वन, इस एक्सिस को देखो और इस रिंग का अगर साइड व्यू देखते हैं, तो इसके रिंग के जो डायमीटर में जो एक्सिस होगा वो अगर इसको मान लेते हैं, then this axis and this axis are going to be parallel to each other। आप समझ रहे हो ना कि ऐसे टिंग 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 टिंग, तो ध्यान से देखना, तो दिस इज दैट एक्सिस, इसको मान लो आप I1 मान लो, तो दिस इज योर I1 एक्सिस। आप आई बिलीव यू गाइस आर एबल टू फॉलो दिस, यू नो, इफ यू लुक फ्रॉम साइड व्यू। चलो मेरा ये तो बहुत ही काम का है, तो अगर हम इसको देख लें, ये सिलेंडर अपना है, दिस इज सिलेंडर, और ऐसे हम ऑब्जर्विंग इट, यू नो, तो दिस एक्सिस रेड वन इज गोना बी दिस एक्सिस, ये वाला एक्सिस है, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला एक्सिस है वो भी इधर ही आपका है, किसी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, वो भी इसके ऐसे है। तो आप समझ पा रहे हो कि दोनों के पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे वर्क करेगा, राइट, या बिकॉज दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर। All good? Now, if I could use the parallel axis theorem, I would be able to find the moment of inertia about this axis because of this ring. All good? Now, we know that the moment of inertia about this axis, जो कि इसके प्लेन में डायमेट्रिकली रखा हुआ है, हमने क्या देखा है, mr²/2, कुछ देर पहले हमने देखा है उसको, तो आप उसको भूलना नहीं है ना। So see how continuous is this topic. तो about this I' का बच्चों कितना वैल्यू हो जाएगा, mr²/2, तो dm कर लो, क्योंकि इसका मास छोटा सा है, तो dm कर लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I को हम क्या लिख सकते हैं, एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ दिस अबाउट दिस एक्सिस, उसको हम भी हम di ही मानेंगे, एक di हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो कि हमारा है dm r²/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो dm(x²) प्लस dm आपका x²। तो आपको हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बिकॉज ऑफ दिस छोटू सा मास, ये आपका हो गया। एक कहानी आपको समझ में आनी चाहिए फॉर यू कैन प्रोसीड फर्दर, ये आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस होल स्मॉल स्टोरीज। नाउ टू फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक फिर से वही कहानी, इफ यू टेक द लिमिट फ्रॉम 0 टू, मान के चलो कि l/2 डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर, इफ यू पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू l/2, दैट्स गोना गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ ओनली दिस पार्ट। So to get the total moment of inertia also because of this part, we need to multiply by 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। So total moment of inertia बच्चों that is going to be 2 times of moment of inertia about this axis। अब हमारा जो di है, I'm going to put the limit because the variable is x, I'm going to put the limit from 0 to l/2 and that's how we going to get it। क्लियर है ना? तो फटाफट काम करते हैं। dm का वैल्यू मेरे को पता है m/l dx, तो कोई देरी किए बिना हम लोग इसको लिख लेते हैं। I should be equals to how much? इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो पहले वैल्यू पुट कर दो, सॉरी dm इज m/l, तो हो जाएगा m/2l, m/2l
देन वी हैव dx एंड r स्क्वायर, तो r स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूं, dx यहां पर लिख दिया, हमने इंटीग्रेट किया 0 to l upon 2 एंड डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाय 2, कीप दैट इन माइंड, बिल्कुल नहीं बोलना है वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो इस पार्ट को देखते हैं, प्लस सेम थिंग 2 से मल्टीप्लाई करो 0 to l upon 2, dm is how much, m upon l dx, m upon l dx लिख लो, और हमारा x स्क्वायर बच्चों, तो वी गोना हैव x स्क्वायर, तो दैट इज गोना गिव द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो कि इस सिलेंडर के प्लेन के ऐसे जा रहा है ना, ऐसे परपेंडिकुलर है। ऑल गुड, तो चलो ठीक है, कहानी आगे बढ़ाते हैं इसको। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बच्चों, तो a टू तो हटम बाहर आ जाएगा, कट जाएगा ना, mr स्क्वायर, और x हमारा हो गया, तो x का लिमिट पुट कर दो, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं आप लोग के लिए, l upon 2, ठीक है जी। और ठीक है, तो इतना हमारा काम हो गया, और देख लेते हैं इस तरफ आपका हो गया प्लस, ठीक है। अच्छा हमने l को भूल दिया क्या, l को लिख लो भैया, l हो गया यहाँ पे है ना, l ऐसे लिख लो, ये 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसको इसमें देख लो आप, m upon l बाहर निकाल लो, तो m upon l बाहर हो गया, दिस इज 2, x स्क्वायर का हो गया आपका x क्यूब अपॉन 3, चलो ठीक है भाई, ये हो गया 0 to l by 2, सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा ये l स्क्वायर बाई 2, तो बच्चों mr स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन हो गया आपका, सॉरी l अपॉन 2 हो गया, और नीचे जो हमारा l है, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, हटाओ इसको, तो दिस पार्ट आई हैव गॉट mr स्क्वायर बाई 2, तो बेसिकली दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा सा स्पेस इसको डिवाइड कर लेते हैं वरना वो सब सेम दिखेगा, है ना, ठीक है। चलिए कम टू दिस पार्ट, आपका हो गया 2ml, इसका हो गया l क्यूब अपॉन 8 टाइम्स 3 24, तो l क्यूब अपॉन 24 ये सब आपको आता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो मेरे को है नहीं, आई एम श्योर आप इसको कर लोगे। तो भैया एक कटम पिटाई हो गया 12, ये भी चला गया, ऐसे हो गया, तो फाइनली व्हाट वी गेटिंग इज ml स्क्वायर अपॉन 12, तो बच्चे हो गया ml स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस ml स्क्वायर बाई 12, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ऑल गुड बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, थोड़ा सा और हम समझेंगे इसको कि इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते थे विदाउट एक्चुअली डूइंग दिस थिंग्स, इसको हम इजीली कैसे निपटा सकते हैं, ठीक है जी। देखो ध्यान दो, अगर हम देखें इसको कंप्रेस कर दें ऐसे, है ना, कंप्रेस कर दें, तो एक रॉड बन जाएगा ml स्क्वायर बाई 12, और ये भैया आपका रिंग हो गया, इसको कंप्रेस कर दो ऐसे तो रिंग हो जाएगा, रिंग तो हमको पता है अबाउट डायमेट्रिकली अगर देखते हैं तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है, हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज और, वन मोर थिंग, अगर इस शेल की जगह सॉलिड सिलेंडर होता फिर क्या करते हैं, तो इवन इफ इट इज अ सॉलिड सिलेंडर, चलो इधर मैं लिख दूं इसको, है ना, अगर वो सॉलिड सिलेंडर होता बच्चों, अगर वो सॉलिड सिलेंडर होता, सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड शेल, आप जो भी बोलना चाहो उसको, है ना, सिलिंड्रिकल शेल हो गया, सॉलिड सिलेंडर कर दो। अगर ये सॉलिड होता तो दिस पार्ट, दिस एलिमेंट्री पार्ट वुड नॉट हैव अ रिंग बट इट वुड हैव बीन अ डिस्क, एलिमेंट्री पार्टिकल वुड हैव बीन अ डिस्क, समझ में आ रही बात को, है ना। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर एक डिस्क होता, इफ सपोज दिस इज अ डिस्क, टिंग टिंग टिंग, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस हमने क्या देखा है, mr स्क्वायर बाई 4, जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने उसको किया, ठीक है। तो ओनली दिस पार्ट वुड बी चेंज्ड, तो बच्चों फाइनली क्या हो जाएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा mr स्क्वायर अपॉन 4, और भाई साहब ये तो रॉड ही रहेगा, इसको आप सॉलिड हो हॉलो हो कंप्रेस करोगे ऐसे, तो दैट इज गोना बी द रॉड ओनली, रॉड का क्या होता है ml स्क्वायर बाई 12 ही होता है। तो बच्चों आप इसको ऐसे याद कर लो और दिमाग में रखो इस बात को कि ऐसे भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर आउट कर सकते हैं क्वाइट इजीली। तो चलो फटाफट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2-3 बातें मुझे और करवानी है आज, तो आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू दैट, टाइम है अपने पास, और फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत कुछ है इस टॉपिक में पढ़ने के लिए, आप पढ़ते जाओ धीरे धीरे, आप रिवाइज करो तो रिवाइज करते जाओ मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और जो बच्चे प्रिप कर रहे हैं जेई का, उनके लिए तो आई एम श्योर कि ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला होगा, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी कि सर थोड़ा सा और भी बेसिक रखें तो अच्छा हो, बट ठीक है, देखते हैं इसको हाउ वी कैन प्रोग्रेस इन फ्यूचर। फिलहाल तो आप इसको देखो, 1-2 और एग्जांपल कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ठीक है जी। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, एक देख लो, एक क्यूब है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को निकालना है। लेट्स सपोज कि दिस इज अ क्यूब,
और चलो भैया क्यूब बन जाए ना, तो ये हमारा क्यूब हो गया, दिख रहा है ना, क्यूब टाइप थोड़ा बहुत ये दिख रहा है। ठीक है, चलो ऐसे हो गया। आई वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्यूब। साइड लेंथ इसका सब मान लो ए मान लो, ठीक है, दिस इज ए अबाउट एन एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा हो। अगर हम क्यूब मान लें, ठीक है, कुछ क्यूब है क्या मेरे पास? नहीं, फिलहाल तो आसपास कोई क्यूब बच्चों नहीं दिख रहा। अच्छा, इसी को मान लो ना, अगर एक छोटा सा क्यूब है, इसका हाफ पार्ट कट कर दो, एक क्यूब है, ठीक है, तो इसके ऐसे एक्सिस जो है, अरे आजा भाई, ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, एक्सिस के सेंटर से यहां से ऐसे पास कर रहा है, एक क्यूब है मान लो तो। ओके, सो यू नो, सो ठीक है, कोई नहीं। अबाउट दिस अपने को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करोगे? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या करोगे, है ना, क्या करोगे? तो ऐसा कुछ है ना, आई थिंक दिस विल बी स्लाइटली बेटर टू डेमोन्स्ट्रेट। तो अगर क्यूब मान लो इसको, ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मेरे को, ऐसे वो इसके सेंटर से पास कर रहा है, ऐसे, समझ में आ रहा है ना? चलो दिमाग लगाओ। अच्छा, इसको और थोड़ा यूज कर लेते हैं ना, इसको और यूजेस, इसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। देखो, बड़ा सिंपल सी बात है, अपना ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, हमको वो प्रिंसिपल यूज करना है कि इफ द मास इज मूव्ड पैरेलली टू द एक्सिस एंड द कीपिंग द डिस्टेंस सेम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता नहीं है। ये बात तो पता है ना? अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं, इफ आई डू द कंप्रेशन, यू नो, इसको अगर हम ऐसे मान लें क्यूब है हमारा, इसको कंप्रेस कर दे ऐसे अबाउट दिस, तो क्या बन जाएगा? एक शीट बन जाएगा, राइट? इट्स गोना बी अ शीट। देखो आइडिया क्या है, इफ आई कंप्रेस दिस, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो हो जाएगा फ्रॉम दिस एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बच्चों वो तो सेम ही रहेगा, राइट? दैट्स नॉट गोना चेंज, इजंट इट? अगर आप इसको फिर से मैं दिखा दूं, तो इफ अबाउट दिस एक्सिस मेरे को चाहिए, अबाउट दिस एक्सिस मेरे को चाहिए, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है बच्चों, यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस टिक 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 मान लेते हैं आर है, इसको अगर मैं ऐसे कंप्रेस करूं और इसको शीट बना दूं, स्टिल दिस डिस्टेंस विल रिमेन सेम। समझ में आ रही बात ना? अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें, इस पॉइंट का देखें, इस पॉइंट का देखें, फ्रॉम दिस एक्सिस वुड स्टिल रिमेन द सेम। बात समझ में आ रही है? चलो, मैंने तो इसको गंदा कर दिया, डांट खाने वाला अलग बात है। तो इसको कंप्रेस कर दो, तो दिस इज गोना बी अ स्क्वायर शीट बन जाएगा, दिस विल बी अ स्क्वायर शीट, कुछ ऐसा एक शीट बन जाएगा अपने पास, है ना जी? स्क्वायर होगा। और स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट हमने देखा है maybe 10 minutes before about the axis which is passing through the center and perpendicular to the plane of the square। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या देखा है बच्चों? m r स्क्वायर, और r की जगह साइड लेंथ a मान लो, तो ma स्क्वायर बाय 6। अभी तो देखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस? वेल दैट्स गोना बी ma स्क्वायर अपॉन 6। इफ दे आस्क मी अबाउट दिस एक्सिस, जो कि इधर से पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, उस केस में वही कहानी, कंप्रेस कर दो ऐसे, क्विक, है ना, क्विक, तो ये शीट कैसा बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा वो शीट, है ना? तो दिस इज हाउ द शीट इज गोना लुक लाइक। हम इसको साइड भी थोड़ा सा करके देख रहे हैं, तो अबाउट दिस सेम स्टोरी, सेम कहानी, a स्क्वायर बाय 6। कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? ओके, नेक्स्ट फटाफट देख लेते हैं, क्यूबॉइड के देख लेते हैं ना, इसी तरह से क्यूबॉइड के देख ले। तो क्यूबॉइड में क्या फर्क आएगा कि इंस्टेड ऑफ स्क्वायर विल गेट रेक्टेंगुलर लैमिना, और बात तो वही फिर से हो जाएगी। तो अगर हम क्यूबॉइड देख ले बच्चों, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी होने वाली है नहीं, है ना? तो लेट्स सपोज इसमें भी 2-3 वेरिएशंस हैं, आप इसके अबाउट, उसके अबाउट, किसी के अबाउट निकालना चाहो तो आप इजीली निकाल सकते हो। मैं थोड़ा इसको गंदा बना दिया हूं, लेट मी मेक इट स्लाइटली बेटर, थोड़ा तो अच्छा दिखे, ठीक है? तो अगर हम इसको देखते हैं अबाउट दिस एक्सिस, अगर मेरे पास एक्सिस है बच्चों, कहां गया मार्कर? हाँ, अबाउट दिस एक्सिस टूइंग, जो कि सेंटर से पास कर रहा है। इस क्यूबॉइड का लेंथ मान लो L, B और H। अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप इसको ऐसे, बड़ा गंदा बना बट ठीक है, मान लो क्यूबॉइड है, इसको आप ऐसे कंप्रेस कर दो तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर शीट। उसका डायमेंशंस क्या होगा? LB, हाइट गया, ठीक है ना? तो दिस इज गोना बी टर्निंग आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा बच्चों, जिसका हाइट वाइट चला जाएगा और सिर्फ बचेगा लेंथ और विड्थ। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अभी तो हमने देखा 1/12 m टाइम्स ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हो जाएगा, दैट इज गोना बी m/12 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, चलो एक और काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। अगर मैं बोलूं कि नहीं है, मेरे को इसके एक्सिस के अबाउट हटा दो, चिपका दो, अबाउट दिस मेरे को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या कर सकते हो आप? अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे चिपका दो, ऐसे चिपका दोगे तो L खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? अबाउट दिस चिपका दो, L गया, क्या बच गया? B और H। तो इसके इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों क्या हो जाएगा? m/12 आपका हो जाएगा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। डायगोनली भी करेंगे। एक जे में अच्छा सवाल पूछा गया था ट्रायंगुलर लेमिना का कुछ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।
आज के लिए विल स्टॉप हियर ओनली। आई बिलीव आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, और अगर बातें समझ में आ रही है तो ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडीइंग। टेक केयर।